Hello my dear friends, once again I welcome you all to RBS Classes, the Pariksha Guru, and today I have brought for you a very important topic, not only very important topic but you can call it one of the most important topics. And in order to get all the notifications, I would like to request to watch, like, subscribe and share this channel, and don't forget pressing bell icons in order to get all the notifications. And the topic we are going to discuss today is not only important, as I said, it you can call one of the most important topics, but it is not so easy as one gets it. जितना आसान लोग समझेंगे इस टॉपिक को उतना आसान ये टॉपिक है नहीं, और ये काफी दिलचस्प टॉपिक है because it does not take you only to the facts of literature but to the facts of European history. ये आपको केवल साहित्य के तथ्यों तक नहीं ले जाता है बल्कि यूरोप के इतिहास का भी ज्ञान आपको देगा. क्यों? क्योंकि लिटरेचर इज ऑलवेज द प्रोडक्ट ऑफ इट्स बैकग्राउंड, इट्स एटमॉस्फेयर, इट्स नेशनल बाउंड्रीज, एंड in order to understand the literature you have to understand all the things that I said. जिनको मैंने कहा उन सबको आपको समझने की आवश्यकता होगी. So the topic that we are going to discuss today is Renaissance. Renaissance, the spelling itself is difficult. You must try to get the difficulty of this topic only through its spelling. Even spelling is difficult and the topic is difficult as well. So I directly shift to Renaissance because topic is very big and it cannot be covered within 45 minutes or 60 minutes. You must need time to understand it well, but I'll try my best to get it, to discuss it as much as I can do within the period. So I directly shift to the topic. Topic is Renaissance. Just try to understand, or just try to see, just try to observe, just try to concentrate. It's spelling first. Renaissance. Spelling itself is difficult. Sometimes people call it Renaissance. Sometimes it is pronounced as Renaissance. All the pronunciations are wrong. The right pronunciation is Renaissance, which means पुनर्जागरण. इसका जो अर्थ होता है उसका अर्थ होता है पुनर्जागरण. Now you'll start thinking that what to do with पुनर्जागरण in literature. पुनर्जागरण का क्या लेना देना है लिटरेचर में? But I would like to tell you that the real literature begins right from Renaissance took place in Europe and it started in Italy. This is a fact. ये एक फैक्ट है कि रेनेसा यूरोप में कहां शुरू हुआ. रेनेसा की शुरुआत यूरोप में इटली में हुआ. कहां इसकी शुरुआत हुई? इटली में. अगर पुनर्जागरण की बात की जाए कि पुनर्जागरण यूरोप में कहां आया, तो आपका जवाब जो होना चाहिए कि पुनर्जागरण इटली में आया एंड इट स्टार्टेड इन इटली. इसकी शुरुआत इटली में हुई. ठीक है. नाउ विल डिस्कस it in details. अब हम इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे एंड इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड रेनेसा वी हैव टू गो बैक इनटू इट्स बैकग्राउंड. हमें इसके बैकग्राउंड में जाना पड़ेगा कि रेनेसा इसका नाम क्यों हुआ. अगर इसको हम कहते हैं पुनर्जागरण, तो पुनर्जागरण का अर्थ होता है कि कोई पुनः जागृत हो गया, कोई सोया हुआ था या कुछ ऐसी चीज थी जो सोई हुई थी और अचानक वो जाग गई हो और फिर से चीजें अच्छी हो गई हो. ठीक है. तो कौन सोया, कब सोया, कारण क्या थे, that we'll discuss before going through the literature after Renaissance. हम लिटरेचर रेनेसा की बात नहीं करेंगे, केवल एक शिफ्टमेंट देखेंगे किस तरीके से परिवर्तन आया. तो the spelling is, I just make it clear, RENAISSANCE and its Hindi is पुनर्जागरण. The very first thing that you must keep inside your brains, पहली चीज जो आपको अपने दिमाग में रखनी है वो ये रखनी है कि इस शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई, या ये शब्द किस भाषा का शब्द है. ठीक है. और पहली बार इसको किसने क्वाइन किया और पहली बार ये कब आया यूज में. ये फैक्ट्स हैं. एंड अप टू व्हाट एक्सटेंट आई थिंक, जहां तक मैं सोचता हूं,
अगर आपको अंग्रेजी समझने में प्रॉब्लम होती है तो मोस्टली जब मुझे लगता है कि ये कठिन फ्रेज मैंने बोला है या कठिन तरीके से मैंने बोला है तो उसको हिंदी में तुरंत मैं ट्रांसलेट कर देता हूं, तो आप समझ जाया करिए कि यही बात मैंने बोली थी। ठीक है, तो द वेरी फर्स्ट थिंग दैट रेनेसा इज अ फ्रेंच टर्म। रेनेसा इज अ फ्रेंच टर्म। रेनेसा इज नाइदर इंग्लिश एंड नॉर इटालियन। ना तो ये शब्द इंग्लिश है और ना तो इटालियन है, ये शब्द है फ्रेंच। रेनेसा इज अ फ्रेंच टर्म। So I write in order to make it clear. It is a French term. French term, which means rebirth. Which means rebirth, revival, और रीअवेकनिंग। इसके तीन अर्थ हो सकते हैं एंड दीज आर द सिनोनिम्स। ये पर्यायवाची हैं एक दूसरे के। द वेरी फर्स्ट मीनिंग इज रिबर्थ, पुनर्जन्म होना। दूसरा है रिवाइवल, कोई चीज बुरी हालत में चली गई हो फिर से वो रिवाइव हो जाए, फिर से उसका जीर्णोद्धार हो जाए। और एक है रीअवेकनिंग, कोई चीज सो गई हो वो फिर से जाग जाए। ठीक है, तो these are the synonyms. अगर कोई आपसे पूछता है, if you're asked that what do you understand by the term Renaissance, simply you have to say it is a French term which means rebirth, revival or reawakening. Clear है? Now where it came to be derived from, ये कहां से derive हुआ है, तो आपको अपने दिमाग में रखना है। कोई पूछता है कि ये किस शब्द से बना है, तो आप कहेंगे Renaissance is a term which has been derived from Italian Rinascimento. See here, Renaissance is a French term which has been derived from Italian Rinascimento. The term Rinascimento is very important. That's why it has been written here under single inverted comma. क्योंकि this is important. Renaissance जो शब्द आया वो आया Rinascimento से. Spelling is RINASCIMENTO. Rinascimento. And which means, जिसका अर्थ है ये तीनों। क्या अर्थ है? Rinascimento means rebirth, रिवाइवल और रीअवेकनिंग। पुनर्जन्म या रिवाइव होना या रीअवेकनिंग होना। ओके, तो अभी तक मैंने आपको क्या बताया? द टर्म रेनेसा। रेनेसा एक फ्रेंच टर्म है और इसकी उत्पत्ति इटालियन रिनासिमेंटो से हुई। रेनासिमेंटो का मतलब होता है रिबर्थ, रिवाइवल और रीअवेकनिंग। ये इंग्लिश है, ये इटालियन है, ये तीनों इंग्लिश हैं और रेनेसा क्या है? फ्रेंच है। रेनेसा का एक लंबा चौड़ा बैकग्राउंड है। सवाल यह उठता है कि क्या ऐसा था जिसका पुनर्जन्म हुआ? क्या ऐसा था जिसको हमने फिर से रिवाइव किया ड्यूरिंग रेनेसा? क्या ऐसा था जो फिर से जाग गया ड्यूरिंग रेनेसा? दैट स्टार्टेड स्लीपिंग लॉन्ग बिफोर, जो बहुत पहले सोना शुरू किया था। तो फ्रैंक टू से लगभग तीनों का अर्थ सेम है, लेकिन अगर हम इसको थोड़ा सजा के डेकोरेट करके बोलना चाहें तो कहेंगे दिस इज रीबर्थ ऑफ एंशिएंट ग्रीको रोमन कल्चर एंड सिविलाइजेशन। प्राचीन यूनानी रोमन सभ्यता और संस्कृति का यह पुनर्जन्म था। इट वॉज रिवाइवल ऑफ एंशिएंट ग्रीको रोमन आर्ट। ये आर्ट और लिटरेचर का रिवाइवल था,
फिर से उसको हमने ढंग का बनाया, जीर्णोद्धार कर दिया। बीच में कुछ दिक्कतें आ गई थी जिससे लिटरेचर उतना अच्छा नहीं हो पा रहा था। एंड इट वॉज रीअवेकनिंग ऑफ द बिगेस्ट थिंग एंड दैट इज द ह्यूमन माइंड। ये पुनर्जन्म था किसका? प्राचीन यूनानी रोमन सभ्यता और संस्कृति का। रिवाइवल था प्राचीन यूनानी रोमन कला और साहित्य का। इट वॉज रीअवेकनिंग और मानव मस्तिष्क फिर से जाग गया यहां। नाउ when for the first time the term Renaissance came to be used in Europe, देखिए जो समय होता है वो बहुत पहले स्थान लेता है। घटनाएं बहुत पहले घटित होती हैं, बहुत पहले घटित होती हैं, लेकिन उनका नामकरण बाद में होता है कि एक समय ऐसा भी आया था। तो जब रेनेसा आया तो रेनेसा के बारे में लोगों ने थोड़ी ना सोचा, क्योंकि समय था भाई, समय बदलता रहता है। Nobody thought of Renaissance कि क्या हो रहा है, लोगों को लगा कि परिवर्तन हो रहा है, अच्छी बात है। लेकिन इसका नामकरण कब हुआ? When it came to be nominated, when it came to be baptized। कब इसका नामकरण हुआ? तो इसका नामकरण हुआ, the term Renaissance for the first time came to be used during 19th century। पहली बार इसका यूज कब हुआ? 19th century में। It came to be used for the first time during 19th century in about 1855 by Jules Michelet। Jules Michelet in the writing the Renaissance। So this is all the history of the particular term Renaissance. That Renaissance took place long before, that we'll discuss in details today in this period, but when it came to be used for the first time, or when it came to be coined first time by whom? It came to be coined first time by Jules Michelet in the writing the Renaissance, and the year was 1855 or around it, इसके करीब करीब कहीं। नाउ, और रेनेसा का जो अर्थ बताया गया वो था जो मैंने आपको बताया। रेनेसा उसी समय को जूल्स मिचलेट ने कहा और उसको डिटेल्स में उन्होंने डिस्कस किया। सो दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। इट कैन बी आस्क्ड व्हेन इट केम टू बी यूज्ड फॉर द फर्स्ट टाइम। जब आपसे पूछा जाएगा कि ये पहली बार कब यूज हुआ, तो नॉर्मली आपके दिमाग में आएगा कि जब रेनेसा था उसी दौरान हुआ था यूज। नहीं, रेनेसा बहुत पहले था, मतलब 14th सेंचुरी करीब करीब। हालांकि इसकी डेट आगे बताई जाती है, जब रेनेसा टुक फाइनल शेप, जब रेनेसा का फाइनल शेप आया तब। लेकिन नहीं, रेनेसा वाज अ वेरी डिफरेंट थिंग। इट कुड नॉट बी एनालाइज्ड, इट कुड नॉट बी डिस्कस्ड, इट कुड नॉट बी डिस्क्राइब्ड इन अ नटसेल। It was in the views of everyone, but unfortunately nobody was there to discuss it well. Only Jules Michelet for the first time dared to discuss it well. So Renaissance, I just gave you the term and its background, its a history, its origin,
and its coinage. But Renaissance, we are going to discuss its a philosophy, its thought process now. अगर आपसे कोई पूछता है, इफ यू आर आस्क्ड, अगर आपसे कोई पूछता है कि when Renaissance began or when Renaissance came in Europe, where Renaissance came in Europe, simply you must answer like an intellectual that time cannot exactly be measured, that when this began and when that began. It was not a point to point incident. Point to point incident नहीं था कि हम exact date, exact time, exact सब कुछ बता दें. Why? Because it was the change in time. The time में change था. It was not like the coronation of any king. It was not the arrival of a dynasty or arrival of an empire कि मैं बता दूं इस साल फलाने यहां आ गए. It would not be possible. Possible नहीं होगा. Because Renaissance is the name given to a particular period of time. एक particular period of time को दिया जाता है. तो it cannot be pointed. It cannot be discussed as a point. ये एक point के रूप में इसे हम डिस्कस नहीं कर सकते हैं. खूब अच्छे से इसको समझ लीजिए. इसको हम पॉइंट के रूप में डिस्कस नहीं कर सकते हैं. तो when Renaissance began in Europe, यूरोप में पुनर्जागरण कब आया? If you are asked so, अगर आपसे ऐसे पूछा जाता है तो आपका जवाब सबसे पहले इतना होना चाहिए कि Renaissance actually began in Europe in 14th century. कब हुआ? 14th century में. देखिए मैं लिखता भी हूं. Renaissance began in Europe in 14th century. रेनेसा की शुरुआत यूरोप में 14वीं शताब्दी में हुई. और 14वीं शताब्दी कब होता है? 14वीं शताब्दी का मतलब होता है 1300 to 1400. Why am I writing this? मैं इसको लिख क्यों रहा हूं? क्योंकि बहुत लोगों के दिमाग में आता है 14वीं शताब्दी का मतलब 1400 से 1500. That would not be good. वो अच्छा नहीं होगा. जैसे इस समय 2022 चल रहा है. As you know that it's 2022, it's 21st century. ये पहली 21st सेंचुरी है. ठीक है. तो रेनेसा लगभग 14वीं शताब्दी में शुरू हो गया, जब अचानक when all of sudden a great change started getting place in almost all the fields of life. जीवन के लगभग सभी क्षेत्रों में अचानक बड़े बड़े परिवर्तन होने लगे. उसी पीरियड को हम क्या कहते हैं? रेनेसा. कैसे कैसे परिवर्तन आए हम देखेंगे. लेकिन अगर आपसे कोई पूछे कि कोई पर्टिकुलर डेट बताइए जब खास परिवर्तन हुआ जिसके कारण हम रेनेसा को शुरू मान लेते हैं, तो आप इतना बोलने के बाद तब बोलिएगा. कैसे बोलेंगे आप? रेनेसा एक्चुअली बिगैन इन यूरोप इन 14th century, बट द रियल रेनेसा, यहां देखिए, बट द रियल रेनेसा, यहां देखिए, द रियल रेनेसा took place or it started in 1453. In 1453, ये डेट इंपॉर्टेंट है. This is very important date. In 1453,
with the refall of Constantinople। कॉन्स्टेंटिनोपल के दोबारा ढहने के बाद, जो ढहने की घटना कब घटी, 1453 ईस्वी में रेनेसा शुरू हुआ, ऐसा माना जाता है। तो अगर कोई पूछे कि रेनेसा कब शुरू हुआ, so simply you have to answer that it began in Europe in 14th century। but कोई अगर आपसे पर्टिकुलर डेट पूछता है, ईयर पूछता है, simply you have to say that with the refall of Constantinople that took place in 1453, Renaissance began in Europe। अब मैं आपको पूरी घटना बताता हूं, try to connect this year to this incident। पूरी घटना बताता हूं। वही दिस इज कॉल्ड रीफॉल ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल। इसको हम रीफॉल ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल क्यों कहते हैं? ओनली बिकॉज वंस द फॉल ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल लॉन्ग बिफोर हैड टेकन प्लेस। ठीक है, देखिए हुआ क्या, मैं 5 मिनट में पूरी कहानी बताता हूं, आराम से उसको समझने का प्रयास करिए। जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड, जस्ट ट्राई टू कनेक्ट द थिंग्स टू दिस पर्टिकुलर ईयर। देखिए यूरोप में जो सबसे पहले 2 सभ्यताएं विकसित हुई, द फर्स्ट 2 civilizations that developed or that originated in Europe were Greek and Roman civilizations। ठीक है, सबसे पहले यूनान विकसित था, धीरे धीरे रोम विकसित हुआ, और रोम की जो एक व्यवस्था थी, रोम जो एक साम्राज्य था, उसका जो डोमिनियन था, जहां तक उसके साम्राज्य फैले हुए थे, एक शहर था वहां, देयर वाज अ सिटी एंड इट्स नेम वाज बाइजेंटाइन। खूब अच्छे से समझ लीजिए, इट्स नेम वाज, केवल कनेक्ट करिए, इसका कुछ लेना देना बहुत ज्यादा नहीं है। इट्स नेम वाज बाइजेंटाइन। In the dominion of Rome, there was a city and its name was Byzantine। Byzantine was the center of all sorts of good activities। हर प्रकार की अच्छी गतिविधियों का जो केंद्र था, वो था बाइजेंटाइन। It was the center of literature, it was the center of art, it was the center of sports, it was the center of trades, it was the center of all sorts of excellences। जितनी भी शानदार चीजें हो सकती हैं, उन सब का केंद्र बिंदु क्या था? ये था। स्पेशली इट वाज द सेंटर ऑफ एजुकेशन, एजुकेशन का ये सेंटर था बाइजेंटाइन। मतलब दुनिया के जितने भी बुद्धिजीवी थे, ऑल द इंटेलेक्चुअल्स राइट फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड, पूरी दुनिया से, वो जस्ट ट्राइंग टू मेक अ फ्लो टुवर्ड्स बाइजेंटाइन। सब बाइजेंटाइन आके बसना चाहते थे। ठीक उसी प्रकार, in the same way as today, Vienna, according to Forbes magazine, is the best one in the world। जैसे वियना आज फोर्ब्स मैगजीन के अनुसार सबसे खूबसूरत शहर है, आपको पता होगा। वही स्टेटस, वियना इज द कैपिटल ऑफ ऑस्ट्रिया, यू नो, वियना ऑस्ट्रिया की राजधानी है। तो उसी प्रकार बाइजेंटाइन वाज एग्जिस्टिंग इन द सेम वे इन यूरोप, स्पेशली इन द डोमिनियन ऑफ रोम। तो बाइजेंटाइन एक शहर था। ठीक, देखिए 328 ईस्वी में, कब? 328 8 AD। अब हम एडी की बात कर रहे हैं। इन 328 AD, लॉन्ग बिफोर, राइट फ्रॉम 1453 से बहुत पहले, 328 AD में, देयर वाज अ किंग in Rome and his name was Constantine। क्या नाम था? किंग। लिखने से मत समझने की कोशिश करिए, जो बता रहा हूं उसको भी समझिएगा, नहीं तो चीजें कंफ्यूज हो जाएंगी। जबान को सुनिएगा। किंग ऑफ रोम, कॉन्स्टेंटिन। In 328, Constantine
वॉज द किंग ऑफ रोम। और उसने एक प्लानिंग किया। व्हाट डिड ही प्लान? उसने प्लान किया कि क्यों ना बाइजेंटाइन का नाम बदलकर मैं अपने नाम पर रख दूं कॉन्स्टेंटिनोपल। And in 328, with the order of the king of Rome, the name of Byzantine came to be changed and now it became Constantinople. अब इसका क्या नाम हो गया? Constantinople. And you can see that this name is just after the name of Constantine. ये नाम कॉन्स्टेंटिन के नाम के बाद पड़ा, मतलब कॉन्स्टेंटिन के नाम पर इस शहर का नाम हो गया। बहुत सारे लोग कॉन्स्टेंटिनोपल नहीं समझ पा रहे होंगे। आई वुड लाइक टू मेक यू वेरी क्लियर दैट दिस इज कुस्तुनतुनिया। नाम आपने सुना होगा कुस्तुनतुनिया। तो कुस्तुनतुनिया का नाम कब प्रकाश में आया? 328 एडी में। इसके पहले ये बाइजेंटाइन था। कोई पूछे बाइजेंटाइन क्या है तो आप कहेंगे कुस्तुनतुनिया का पुराना नाम है, कॉन्स्टेंटिनोपल का पुराना नाम है। अब सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, लेकिन इस दुनिया में कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनको सब कुछ अच्छा नहीं लगता अगर ठीक ठाक चल रहा हो, उनको कुछ बुरा भी चाहिए। तो some unknown cruel people who came to be known as Turks afterward attacked this city and destroyed it in 476. 476 AD was the year in which some unknown cruel people attacked this city and destroyed it. इस शहर पर हमला किए और पूरी तरीके से इस शहर को इन लोगों ने क्या कर दिया? ध्वस्त कर दिया। Now the city was no more. अब सिटी नहीं थी, because it was not only destroyed, it was burnt, it was eliminated from the world. You cannot find easily now on the map of the world. Constantinople is no more. Constantinople is no more. And only because of these cruel, uncivilized, uncultured people. इनका काम ही था। And all the intellectuals came to be murdered. सभी बुद्धिजीवियों की हत्या कर दी गई, और जो बचे भी रह गए थोड़े बहुत, उनको धमकी दी गई कि if you are going to write anymore, बहुत बुरा परिणाम होगा। The result will be heinous. क्या जमाना रहा होगा। इतने खूबसूरत शहर को ध्वस्त कर दिया। और जैसे ही as soon as this city came to be destroyed, a new period began, and that period is known as dark world, a dark age. 476 के बाद ही मान लिया जाता है कि मिडिल एज की शुरुआत हुई। तो पहली बार कुस्तुनतुनिया कब ढही? यहां ढही। लेकिन धीरे 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 चीजें बदली। इन लगभग 1000 सालों में, 1453 से लेकर 476 के बीच का जो समय है, लगभग 1000 सालों में दुनिया फिर से सुधरी। फिर कुछ बुद्धिजीवी आए, खास करके 1066 में जब नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट आया, जब विलियम द कंकरर गद्दी पर बैठा। बैटल ऑफ हेस्टिंग्स के बाद धीरे धीरे चीजें सुधरी, और भी सुधर ही रही थी कि 1453 ईस्वी में फिर तुर्कों ने हमला कर दिया। In 1453, Constantinople once again came to be attacked by Turks, and now it was completely deleted, completely eliminated, completely eradicated from the map of the world. अब ये पूरी दुनिया से पूरी तरीके से ध्वस्त कर दिया गया, खत्म। इस बार फाइनली खत्म, मिला ही नहीं उसके बाद। 1453 वो था, इसीलिए इसको रीफॉल कहा जाता है, फिर से ढहा। अब मजेदार बात ये देखिए कि सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, लोगों ने हमला किया, इसको ध्वस्त कर दिया। लेकिन एक कहावत है कि दूध का जला हुआ व्यक्ति छाछ भी फूंक फूंक के पीता है। इस बार लोग सतर्क थे। This time the people were
अवेयर विद द पास्ट। इस बार वो तैयार बैठे थे कि अगर हमला होगा तो क्या क्या हो सकता है, तो अगर ऐसा हुआ तो हम कहां भाग के जाएंगे। And with the refall of Constantinople, ये देखिए अच्छा सा स्टेटमेंट है। With the refall of Constantinople in 1453, a drift of intellectuals took place from Constantinople to Italy. कॉन्स्टेंटिनोपल टू इटली। जैसे ही कुस्तुनतुनिया दोबारा ढही, ड्रिफ्ट का मतलब होता है वे बादल जो हवाओं में तैरते हैं, जो बारिश ले आते हैं। तो ये जो बादल थे ये बारिश तो नहीं लाए, लेकिन बुद्धिजीवियों की बाढ़ इटली तक ले गए। बुद्धिजीवियों की बाढ़। All the intellectuals started their activities, their writings, their arts in Italy in 1453. Hence, Renaissance started took place in Italy. Started कहिए या took place कहिए, दोनों सेम है। इस तरीके से आप देख सकते हैं कि जो रेनेसा आया वो कहां आया? इटली। क्यों? क्योंकि सारे बुद्धिजीवी जैसे ही कॉन्स्टेंटिनोपल पे हमला हुआ, सब भाग के कहां पहुंच गए? इटली। और वहां उन लोगों ने लिखना पढ़ना शुरू किया। अब फिर परिवर्तन क्या हुआ जब सारे बुद्धिजीवी पहुंचे? When all the intellectuals reached Italy, what kind of changes started getting place? What? अब देखिए, Renaissance, for the first time in human history, in Renaissance, पहली बार मानव इतिहास में, for the first time in human history during Renaissance, the people were so intellectuals that they went backward in order to progress forward. पहली बार इतिहास में, मानव इतिहास में, रेनेसा के दौरान लोग पीछे की तरफ गए आगे की तरफ उन्नति करने के लिए। और यह सबसे बड़े बुद्धिजीवियों का कार्य होता है। नॉर्मली आप सुनते होंगे मार्च फॉरवर्ड, डोंट फॉल बिहाइंड, आगे बढ़ो पीछे मत देखो। लेकिन बहुत कम आप सुनते होंगे कि अपने भूत से अनुभव ले लेकर आगे बढ़िए जिससे कभी कोई गलती ना हो। और रेनेसा पीपल वर ऑफ दैट इंटेलेक्चुअलिटी, ये लोग उतने ही बड़े इंटेलेक्चुअल्स थे। दैट व्हाट दे डिड, they went backward in order to progress forward. For the first time in human history, मानव इतिहास में पहली बार रेनेसा के लोग, यार रेनेसा के दौरान जो लोग थे वो पीछे की तरफ गए आगे की तरफ उन्नति करने के लिए। ठीक है, इस बात का खूब अच्छे से आप ध्यान दे रहिएगा। नाउ
Important features of Renisha. Important features of Renisha. Some important features of इतनी चीजें मैं क्यों बता रहा हूं? क्योंकि जो कुछ भी वट एवर यू विल फाइंड इन Renisha पीरियड, इन Renisha वर्ल्ड, that definitely you see in the writings during Renisha or after Renisha. Renisha के बाद जो प्रभाव था ये पूरी तरीके से लिटरेचर पर देखा जाने लगा, इस समय का जो प्रभाव था. तो some important features, why I wrote some, क्योंकि Renisha was so versatile period, Renisha इतना versatile period था, Renisha was so productive period, इतना productive period था, Renisha was so pregnant period, इतना pregnant period था ये, that all the features cannot be discussed easily, but important features, some important features we can discuss. वो छोटा सा ये पीरियड होता है जिसमें हम लोग पढ़ते हैं 40-50 मिनट का या 1 घंटे का, उसमें इन सारी चीजों को डिस्कस करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है. तो कुछ इंपॉर्टेंट बातें हम डिस्कस कर लेते हैं. लेकिन अगर आपको रेगुलर क्लास लेनी है, अगर वास्तव में आपको, इफ यू रियली वांट टू बी सिलेक्टेड इन TGT और PGT, or you can qualify NET, or you want to be selected in higher education, so you must take admission. देखिए, इस दुनिया में हर चीज को भोजन चाहिए. पेड़ को आप पानी नहीं देंगे, खाद नहीं देंगे, सूख जाएगा. In the same way, teacher's fee cannot be paid. टीचर की जो फी होती है उसे कोई नहीं पे कर सकता. But you can give the diet of the brains. दिमाग का जो भोजन होता है वो चाहिए ही चाहिए, तभी दिमाग चलेगा, अदरवाइज डूब जाएगा. या तो फिर कोई इतना बड़ा व्यक्ति हो कि भाई उसे किसी चीज की आवश्यकता ना हो, और बिना जरूरत के कुछ भी नहीं होता. बिकॉज necessity is the mother of invention. So for that you must try to be admitted. छोटी सी फीस, कल आपका सिलेक्शन हो जाएगा, you will find great salary, आपको बड़ी सैलरी मिलेगी, and you will not pay us. हमें आप नहीं दे देंगे, आप लेंगे. So in order to take you to that destination as a teacher, I just request you all, if I am teaching you well, just contact this channel and try to know the admission procedure in order to get all the videos on our app, regular classes. And we are going to begin the offline classes also in this criteria, in this campus, and you can enjoy even that. So some important features of Renisha. Very first thing, जो पहली चीज आपको देखनी है वो देखनी है आपको that humanism. अगर किसी समाज को अच्छा होना है तो ह्यूमनिस्टिक अप्रोच होना बहुत जरूरी होता है. मानवतावादी जो विचारधाराएं होती हैं, अगर वो किसी समाज में नहीं है तो ऐसा समाज समाज कहलाने का हकदार नहीं होता है. ह्यूमनिज्म सिंपली इज द रिलीजन ऑफ ह्यूमन बीइंग्स, religion of goodness. Humanism simply means the creation of the good life of man. किसी व्यक्ति, किसी आदमी, किसी औरत की जिंदगी को अच्छे स्तर तक ले जाना, अच्छा बनाना, that is called humanism. यही ह्यूमनिज्म है. देखिए, सेकंड, दिस इज इंडिविजुअलिज्म. What do you understand by individualism? Simply, individualism means some very specific
quality associated with some very specific person or thing. जैसे कोई पूछे आपकी इंडिविजुअलिटी क्या है, इसका मतलब जो खासतौर पर आप ही के पास हो सबके पास ना हो. जैसे आप कहें माई मेमोरी इज वेरी स्ट्रांग, जैसे मैं अपने बारे में कहूं तो माई मेमोरी इज वेरी स्ट्रांग, तो दैट माई मेमोरी इज माई इंडिविजुअलिटी. सबकी नहीं होती है, कुछ लोगों की होती है. आई एम एक्यूरेट, दिस इज माई इंडिविजुअलिटी. जो सबके पास ना हो, आपके पास खास तौर पर हो, आपका अपना हो, दैट इज इंडिविजुअलिज्म. तो इन लोगों का मानना था, इस समय जो लोग थे, इन लोगों का मानना था कि इफ यू हैव टू डेवलप वेल, you must go through two concepts. Humanism, that you must try to create a good life of man, and individualism, first you must try to correct yourself. अगर आप अच्छे होंगे तो आपका समाज अच्छा होगा, because you are just a part of your society. आप अपने सोसाइटी के एक हिस्से हैं. Third thing is love. Without love, no good society can be created. बिना प्यार के कोई अच्छा समाज तैयार नहीं हो सकता है. Love is very necessary for a good life, for a good society, for a good creation, for anything that is good. Love is very necessary. कुछ भी अगर अच्छा है तो उसके लिए लव बहुत जरूरी है. Cult of beauty. Cult of beauty. As John Keats says, that beauty is truth, truth, beauty. इस दुनिया में जो सुंदर है वही सत्य है और जो सत्य है वही सुंदर है. सत्यम शिवम सुंदरम का जो अप्रोच होता है वो इन्होंने अपनाया. Even beauty was being worshipped during Renaissance. रेनेसा के दौरान ब्यूटी को पूजा जाता था. खास करके women were being given the importance of a goddess. देवी का महत्व वहां दिया जाता था, स्पेशली beloveds, जो प्रेमिकाएं होती थी. Even still you go to the jungles of Italy. अगर आज भी आप इटली के जंगलों में जाएं तो you'll find the statues of beloveds. beloveds की स्टैचूज पाएंगे जिनको पूजा जाता था. They were being worshipped. Cult of beauty. पूरी जिंदगी हम केवल एक चीज चाहते हैं कि हमारी जिंदगी में सुंदरता ही सुंदरता रहे. हम पैसा कमाते हैं तो सोचते हैं अच्छा सा घर हो जाए, घर बन जाता है तो अच्छा सा ये सज जाए, डेकोरेट हो जाए. मेरा परिवार सुंदर चाहते हैं. सुंदरता कई प्रकार की होती है. I am not talking about only physical beauty, but all sorts of beauty we are talking about. Next comes organic. Organic sensibility. Next comes painting. Next comes navigation, and finally comes exploration. These are the important features. जैसे ऑर्गेनिक सेंसिबिलिटी की अगर हम बात करें तो ऑर्गेनिक सेंसिबिलिटी उन्हीं लोगों के पास आती है जो वर्सटाइल होते हैं. ऑर्गेनिक सेंसिबिलिटी से अगर सबसे ज्यादा भरे हुए लोग होते हैं तो लवर, ल्यूनेटिक एंड पोएट. इनकी ऑर्गेनिक सेंसिबिलिटी बहुत स्ट्रांग होती है. प्रेमी, पागल और कवि. इनके सोचने की क्षमता, कल्पना करने की क्षमता सामान्य व्यक्तियों से कई गुना ज्यादा होती है. दैट इज वाई इनके इमेजिनेशन को हम सेकेंडरी इमेजिनेशन कहते हैं, टॉप इमेजिनेशन कहते हैं. तो ऑर्गेनिक सेंसिबिलिटी के लिए आपको अपनी दुनिया, अपनी क्षमता, अपने सर्कमफेरेंस से बाहर जाना होता है. यू हैव टू लीव योर सर्कमफेरेंस इन ऑर्डर टू गेट ऑर्गेनिक सेंसिबिलिटी. पेंटिंग, इस दौरान 4 सबसे महत्वपूर्ण पेंटर थे. The 4 great painters were there during Renaissance, and these were especially Leonardo da Vinci. नाम आपने सुना होगा मोनालिसा की पेंटिंग. Still it is a mystery
अभी भी एक रहस्य है. Nobody knows that Mona Lisa is smiling or weeping or in which condition Mona Lisa is found in this painting. So this is a great painting. Leonardo da Vinci, Raphael, Michelangelo and Andrea del Sarto. These four great painters were there during Renaissance. अगर हम नेविगेशन की बात करें तो तब न कारें थी और न फ्लाइट्स थी न ट्रेन्स थी. जो लोग थे उनकी यात्रा एक नौकायन होती थी. एक देश से दूसरे देश तक जाना, कहीं से कहीं तक जाना, समुद्री यात्रा होती थी. एंड दैट वुड बी कॉल्ड नेविगेशन, नौकायन. इसका प्रभाव आप शेक्सपियर के नाटकों में देख सकते हैं. जितनी भी शेक्सपियरियन कॉमेडीज हैं, ऑलमोस्ट इन एवरी कॉमेडी ऑफ विलियम शेक्सपियर यू फाइंड द ट्रेसेस ऑफ नेविगेशन. नेविगेशन के ट्रेसेस आपको देखने को मिलते हैं. Because great navigators were there. It was the time of Marco Polo, great navigator. It was the time of Columbus, who discovered America. When? In 1492. It was the time of Vasco da Gama, who discovered India in 1498. Great navigators were there. And through their navigation, they explored this topic. They explored a lot of things. Great intellectuals were there. In nutshell, I am summarizing it. Great intellectuals were there. It was the time of Martin Luther, the great religious reformer. समाज सुधारक था. प्रोटेस्टेंटिज्म से जुड़ा हुआ व्यक्ति था. लिबरलिज्म से जुड़ा हुआ व्यक्ति था. उदारवादी नीतियां थी उसकी. It was the time of Machiavelli. This is a great name, Machiavelli. This is associated with this. Machiavelli. 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 Machiavelli is known for his great writing, Prince. The Prince. बहुत अच्छी बात इसने लिखी है. मैकियावेली इज ऑल्सो नोन एज द फादर ऑफ मॉडर्न पॉलिटिक्स. आधुनिक राजनीति के जनक कहे जाते हैं ये, क्योंकि ये पहले ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने राजनीति को कूटनीति में बदलकर पेश किया. बिकॉज मैकियावेली जस्टिफाइड द एंड ओनली. ही जस्टिफाइड द एंड ओनली. इनका कहना था यू मस्ट जस्टिफाई द एंड ओनली. अंत भला तो सब भला. आपने क्या क्या साधन अपनाए हैं अंत को अच्छा करने के लिए, दैट डजंट मीन, दैट डजंट मैटर. उसका कोई मतलब नहीं है. ये कहते हैं दिस वर्ल्ड समटाइम्स विल बी गवर्न्ड बाय फॉक्सेस एंड समटाइम्स बाय लायंस. इनका कहना है कि ये जो दुनिया है इस पर कभी लोमड़ी शासन करेगी तो कभी शेर शासन करेगा. कभी ताकत से शासन किया जाएगा इस पर तो कभी दिमाग से, चालाकियों से. अगर हम इनकी फिलॉसफी की बात करें तो जो मुगलिया सल्तनत थी, मुगल काल में मैक्सिमम ऐसा होता था कि लोग अपने पिता की हत्या करके खुद राजगद्दी हथिया लेते थे. तो इसका मतलब उनकी फिलॉसफी ठीक थी. मुगलिया सल्तनत इनके हिसाब से फिट था. तो थोड़ा सा ये खिलाफ जाते हैं ह्यूमनिज्म के, लेकिन इंडिविजुअलिज्म को सपोर्ट करते हैं. उनका मानना है कि अगर एक एक व्यक्ति चालाक हो जाए तो कौन किसको धोखा देगा, तो पूरा समाज ही अच्छा हो जाएगा. लेकिन हम सबको होना पड़ेगा. कुछ चालाक हो गए और कुछ वैसे ही भोले भाले रह गए तो भोले भाले तो चालाकों के द्वारा ठग लिए जाएंगे. दैट वुड नॉट बी गुड. तो इन्होंने ऐसी बात कही. अगर हम शेक्सपियर के नाटकों में इसको देखना चाहें मैकियावेलियन कॉन्सेप्ट, तो इफ यू गो थ्रू मैकबेथ, मैकबेथ क्या करता है अपनी राजगद्दी को बचाए रखने के लिए या राजगद्दी को पाने के लिए कितने हिनियस मर्डर्स करता है और करवाता है. तो दैट इज मैकियावेलियन फिलॉसफी बिकॉज दैट इज बेस्ड ऑन इंडिविजुअलिटी. वो इंडिविजुअलिटी पर पूरी तरीके से बेस्ड है. अगर हम बातें करते रहें तो रेनेसां इज सच अ टॉपिक कि 2-4 दिन लगातार बातें चलती रहेंगी और ये कभी पूरी नहीं होंगी. अंत में भी वही, ये छूट गया, ये बचा रह गया, एंड दैट यू विल नॉट बी सेटिस्फाइड. बट आज के लिए इतना. और अगर रेनेसां को
विस्तार पूर्वक समझना है, टॉपिक्स को विस्तार पूर्वक समझना है, तो आप इमीडिएटली इस चैनल से जुड़िए, एडमिशन लीजिए और हमारे ऐप को ज्वाइन करिए। आपको सारी की सारी चीजें बहुत ही बेहतर तरीके से दी जाएंगी और ऑफलाइन क्लासेस के लिए जुड़ेंगे तो क्लास में भी आपको सारी चीजें मिलेंगी। So this much is for today in this topic, and once again I urge you to watch, like, subscribe and share, and please press the bell icon in order to get all the notifications. Thank you.